30 to 60 degree of the zodiac is the second sign of the zodiac, and this is known by the name Taurus, और हिंदी में हम इसको वृषभ या वृष राशि भी बोलते हैं। तो ये दूसरा जोडियक का साइन है, दूसरी जोडियक की राशि है, जिसको हमने कहा टॉरस या वृषभ या वृष भी बोलते हैं कभी कभी। और आप इसका जो सिंबल देख रहे हैं, द सिंबल इज द बुल, symbol of this sign is the bull, and bull will describe the complete characteristics of this sign, क्योंकि ये characteristics जानना बहुत जरूरी है हमें कि हर साइन से हम क्या देखते हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है साइन, what characteristics it represents, what personality it represents, what qualities it represents। तो ये हम इससे करेंगे बुल से। Then third sign of the zodiac, which extends from 60 to 90 degree of the zodiac, is known by the name Gemini, or we call it Mithun in Hindi. Gemini or Mithun in Hindi. And what you see, the sign or the symbol of this sign is the twins, two females, that is the twins actually. So these two females will represent the entire characteristic of this Rashi. Then we go to the fourth sign of the zodiac, which extends from 90 to 120 degree of the zodiac. And this is the fourth sign known by the number 4, which is Cancer, or in Hindi we call it Kark Rashi, Kark Rashi. और यहाँ आप देख रहे हैं इसका जो symbol है, that is a crab, which is a sea animal. So crab will describe the complete characteristic of this Rashi. Then we go to the fifth sign, which extends from 120 to 150 degree of the zodiac, and this is known by the name Leo, or in Hindi we call it Singh or Sher. And इसका symbol भी वही है, lion. Symbol is the lion. So lion की जो qualities हैं वही इस राशि की भी qualities हैं, because he is the king of the forest. So similarly, these people are also like that only. Then we go to the sixth sign of the zodiac, which extends from 150 to 180 degree of the zodiac, and this is known by the name Virgo, or in Hindi we call it Kanya Rashi. And the symbol of this sign is a female that you can see from here. Then the seventh sign of the zodiac is from 180 to 210 degree of the zodiac, which is the seventh sign. It's known by the name Libra, or in Hindi we call it Tula Rashi. And as you can see, the symbol is a simple balance. So balance will represent all characteristics of this sign. Then we go to the eighth sign of the zodiac, which is from 210 to 240 degree of the zodiac, which is known as Scorpio, or in Hindi we call it Vrishik. And you see that the symbol is a scorpion. Symbol is a scorpion, या जिसको हम बिच्छू कहते हैं. So bichu or scorpion will describe the characteristics of this Rashi. Then we go to the next Rashi, that is ninth sign of the zodiac, from 240 to 270 degree of the zodiac, और इसको हम कहते हैं Sagittarius, और in Hindi we call it Dhanu Rashi. Sagittarius or Dhanu Rashi. Now what you see the symbol here, symbol is, it is divided into two portions. The front portion is man with the bow and arrow, एक आदमी है तीर कमान लिए हुए है, and the second portion is the horse. Second portion is the horse. तो ये जो धनु राशि है, Sagittarius sign है, it is completely described by this symbol, because the front portion is the man, the human being with the bow and arrow, and the back portion is of a horse. Then 10th sign is from 270 to 300 degree of the zodiac, and this is known by Capricorn, or in Hindi we call it Makar Rashi also. और मकर राशि का symbol भी is divided into two parts. It's not clearly shown here, but it is in two parts. The first portion is a deer, हिरन जिसको हम बोलते हैं, and the back portion is a crocodile. Crocodile, मगरमच्छ जो है. Front portion is deer and the back portion is a crocodile. So that is the symbol of Capricorn sign. The next symbol is, next Rashi is from 300 to 330 degree of the zodiac, and this is known by the name Aquarius, or in Hindi we call it the Kumbh Rashi. Or as you can see that the symbol is the man with a pitcher of water. Man with a pitcher of water. And once you remember the symbol of each Rashi, then it's very easy to find out all the characteristics of these signs. So this is a man with the pitcher of water.
And the last Rashi of the zodiac is from 330 to 360 degree of the zodiac. And this is the 12th sign known by the number 12. And this is known as Pisces, or in Hindi we call it Meen Rashi. Or as you can see here, it is represented by a pair of fish. Pair of fish, and just see, there one is the head and others is the tail actually. So it means they are moving in the opposite direction. That is more important. And once we know the two fishes moving in the opposite direction in the sea, then we can find out the entire characteristic of these Rashis. So now what we have done, we have divided the zodiac into 12 equal parts, and each part is known by a sign, and represented by a symbol also. और जो भी इनके symbol हैं, क्योंकि हमें ultimately we have to learn what these rashis represent, what are the characteristics of these signs. तो जो भी लोग हैं, जो भी नेटिव्स होते हैं इन राशियों वाले, उनकी क्या अल्टीमेट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो हमें देखना पड़ेगा. और वो काफी कुछ हम जब सिंबल हमें याद होगा तो हम अपने आप पता लगा सकते हैं कि ऐसे नेटिव्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. और जब भी आप हॉरोस्कोप देखते हैं, you find that name of the Rashi is never written actually. These Rashis are represented only by the number. So you have to remember these Rashis by the numbers. So just suppose I say number 5, so my mind should go that I'm talking about the Leo sign. If I say 12, then my mind should go that I'm talking about Pisces sign. So ultimately all these Rashis are to be remembered by the numbers from 1 to 12. So that we have to do. Uske baad we will just talk about the various planets also. In Vedic astrology or in Hindu system, we consider 9 planets: Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, and Rahu and Ketu also. We don't consider Uranus, Neptune, and Pluto in our system. We consider only 9 planets: Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu and Ketu. और राहु केतु को भी हमने प्लैनेट कहा बिकॉज अल्टीमेटली वी फाइंड दैट दे आल्सो अफेक्ट आवर लाइव्स. अब जहां तक इन प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स का सवाल है, तो व्हाट इन एस्ट्रोलॉजी वी डू दैट ऑल दिस साइन, ऑल दिस प्लैनेट्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ए मेंबर ऑफ ए प्लैनेटरी कैबिनेट. जैसे एक स्टेट कैबिनेट होता है, उसमें राजा होता है, रानी होती है, ऑल पीपल आर देयर who are controlling the activities of the state. तो उसी तरह से हमने इनको रिप्रेजेंट किया एज ए मेंबर ऑफ द प्लैनेटरी कैबिनेट. और उसमें हमने कहा कि सन इज द किंग ऑफ द प्लैनेटरी कैबिनेट. सन जो है वो राजा है. सन इज द किंग ऑफ द प्लैनेटरी कैबिनेट. And once you know, once you are able to consider that particular character of the planetary cabinet, then it's very easy to consider all the qualities of these planets. So Sun is the king of the planetary system. Then Moon is the queen. Or all these planets, they are also represented by certain symbols. So these symbols are here. Sun is represented like this. Moon is represented like this. So Moon is to be considered as a queen. One is the king and another is the queen. It means these two planets, they are the member of the royal family. They are the king and the queen. Then as far as the Mercury is concerned, Mercury is considered as a prince of this planetary cabinet. He is the son of king and the queen. So Mercury is the prince or the Rajkumar. So we'll talk about all these things, but it's represented by this symbol. This is the symbol of Mercury. Then Mars is the commander-in-chief of the planetary cabinet. जो सेनापति है, या हम कहेंगे कि is the commander of the forces. So Mars is the commander of forces and is known as commander-in-chief in the planetary cabinet. Now this cabinet has two ministers. One is the Jupiter and another is the Venus. Now this planetary cabinet has two ministers. One is Jupiter and another is the Venus. Now Jupiter has a specific responsibility. Jupiter is not the overall minister. He has been assigned certain responsibility. And what is the responsibility? He has to advise the king on religious and spiritual matters only. He is not concerned with other activities of the state, but he advises the king
only on the matters of religious and spiritual activities. और जहाँ तक वीनस का सवाल है, Venus is a general minister, or you can say that number 2 in command after the king. The Venus looks after everything. So he is the main minister, and main minister you can say is like a king because he is second in command there. He has not been assigned any specific responsibility, but he is the overall in charge after the king. So Venus plays a very important role because he becomes the main minister, whereas Jupiter has a specific responsibility. As far as Saturn is concerned, Saturn is a servant in the planetary cabinet. जैसे जो नौकर होते हैं, servant होते हैं, तो Saturn को उसका दर्जा दिया गया कि Saturn is nothing but a servant in the planetary cabinet. And as far as Rahu and Ketu are concerned, they are not the planet. Basically we call them shadowy planets या छाया ग्रह बोलते हैं, और उसके बारे में भी हम discuss करेंगे, but we start from the main planet, which is Sun. So as I told you that Sun is the king in the planetary cabinet. King means the most important person, VVIP. He is the most important person. Or otherwise also Sun is the main planet in the solar system, and everyone, all other planets, they revolve around the Sun. So Sun becomes the main person. He is the most important person, most important planet as far as our solar system is concerned. Now the question is, what all Sun represents in astrology, that we have to understand. Now if we see what are the important parts as far as we human beings are concerned, अगर आप देखें तो Sun जो है आपका जो most important part of the body है, or you can't say body but most important part of yours. Body consists of 3 things: body, mind and the soul. Physical body, mind and the soul. And the most important part is soul. आत्मा है आपकी. Sun हमारी आत्मा है. तो Sun represents our soul. Sun represents our soul. जैसे कहते हैं कि we keep on talking कि that person is a nice person at the soul level. Person is a nice person at the soul level. क्या मतलब हुआ कि वो आदमी ऐसा है कि एक सोल लेवल पर एक अच्छा आदमी है, मतलब वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा, कभी किसी को परेशान नहीं करेगा, कभी किसी को तंग नहीं करेगा, किसी के साथ बदमाशी नहीं करेगा, और कभी किसी का नुकसान पहुंचाने की कम से कम कोशिश नहीं करेगा. तो इसका अर्थ ये हुआ कि सन जिसका भी वेल प्लेस्ड होगा अपने हॉरोस्कोप में, ही इज ए वेरी नाइस पर्सन एट द सोल लेवल. और ऐसा इससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं मिल सकता कि वो बहुत अच्छा हो सोल लेवल पे, कभी किसी का नुकसान ना करना चाहे, कभी किसी का धोखा ना दे. तो अगर हम देखें एक एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, सपोज वी कीप ऑन डूइंग पार्टनरशिप, वी कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल, और इवन इन द केस ऑफ मैरिज, अगर हमें देखना है कि एक बहुत हमें अच्छा इंसान चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, या एक हम अच्छे आदमी से डील करें, अच्छे आदमी से फ्रेंडशिप करें, तो हमें क्या देखना है कि सन उसका वेल प्लेस्ड टू हॉरोस्कोप में. Sun is well placed, so one thing is assured that he is not going to create any problem for you. तो Sun का इतना अच्छा रोल है because Sun represents your soul. At soul level, what you like, that is represented by the Sun. Now, second thing is the most important person in your life. जब आप birth लेते हैं, तो who is the most important person in your life? Most important person is your father. Most important person is your father. So Sun represents your father also. Sun represents your father also. तो अगर Sun किसी का well placed है, it means he belongs to a good family. His father is a rich person. और हम लोग कहते थे पहले कि that person is born with a silver spoon in the mouth. So what does it mean? He is born in a rich family. His father is a rich living person. That was the meaning of this. And here also it applies. If Sun is well placed in your horoscope, it means you belong to a rich family. Your father is a rich living person. You belong to a good family. तो ये भी पता लग गया आपको कि you belong to a good family. At the soul level, you are a wonderful person. और अगर हम physical body को consider करें, तो which is the most important organ of the body? Is the heart. अगर एक सेकंड भी हार्ट बीट आपकी बंद हो जाती है तो आप लाइफ खत्म हो जाती है एक्चुअली.
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिसका भी सन वेल प्लेस्ड होगा, ही हैज अ वाइब्रेंट हार्ट, उसको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसा आप जानते हैं कि दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम पर्टिकुलरली इन इंडिया नाउडेज। और कुछ साल पहले एक WHO ने स्टडी कंडक्ट की थी इन आई थिंक इन 2010, एंड यू नो व्हाट दे फाउंड? They found that 60% of the world heart patient, they exist in India. First thing, कि 60% जितने भी वर्ल्ड में हार्ट पेशेंट हैं, out of them 60% are in India. And what they inferred, कि within a period of around 10 to 15 years, everyone in India will suffer from heart problem. Whether it's a child, a small child, or an old person, everyone will suffer from the heart problem. This is such a serious position as far as India is concerned. और आप देखिए कि through astrology we can find out at the time of birth how your heart is going to behave, whether you are going to suffer from a heart problem or not, whether your heart will be okay or not. ये एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ही है जो आपको बता सकता है. नो मेडिकल साइंस कैन टेल यू कि यू आर गोइंग टू सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम एट दिस एज, बट एस्ट्रोलॉजी कैन टेल यू, इट कैन गाइड यू एट द टाइम ऑफ योर बर्थ. एंड वंस यू नो दैट at the time of birth that you are likely to suffer from the heart problem, so what is the problem? You take care. आप खाना पीना ठीक करिए, एक्सरसाइज ठीक करिए, मेडिटेशन करिए, तो फिर प्रॉब्लम क्यों होगी? काफी हद तक आप उससे बच सकते हैं. एंड दैट इज द पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी. दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेल्फ मैनेजमेंट, कि इसका हम फायदा उठाएं जिससे हमारी लाइफ जो है वो बेहतर हो. और देखिए, एक बार अगर आपने कुछ नहीं किया और एक बार आपको हार्ट अटैक हो गया, प्रॉब्लम हो गई, और फिर कहें कि छोटे मोटे उपाय से कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा. आपको बचपन में बता दिया गया, जब आपका बर्थ हुआ उस टाइम आपको पता लग गया कि आपकी बॉडी में इस टाइप की प्रॉब्लम होने वाली है, आप उस हिसाब से ठीक करिए अपने आप को. ये तो एक बहुत अच्छा एक गाइडिंग टूल है आपके लिए, कि आपको बता देता है कि ये तरह की प्रॉब्लम आपको होती है, और उसी हिसाब से आप अपने आप को प्लान करिए. जैसे हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में कि वेदर फोरकास्ट होता है डेली का, और हम लोग उसी हिसाब से अपना डे प्लान करते हैं. यहाँ पर भी वही चीज है, हमको पता लग गया कि इस टाइप की पॉसिबिलिटी है आपके साथ होने की, तो आप प्लान करिए अपनी लाइफ को, और आप देखेंगे कि हम बहुत हद तक उसको ठीक कर सकते हैं. बट वी हैव टू टेक एक्शन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. और ये आपको बचपन में ही बता दिया गया, बचपन में ही आपको पता लग गया कि इस टाइप की प्रॉब्लम होने वाली है. तो ये सन जो है हमारे हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है. और सन जो है लाइट देता है हमको, सन हमको लाइट देता है. और लाइट हमको कहाँ से मिलती है? अपनी आंखों से मिलती है, आईज से. तो सन रिप्रेजेंट योर आईज आल्सो, कि अगर सन अच्छा प्लेस्ड है तो आपको आईज की प्रॉब्लम नहीं होगी, और सन अगर प्लेसमेंट उसका अच्छा नहीं है तो नेचुरली यू आर लाइकली टू सफर फ्रॉम द आईज प्रॉब्लम आल्सो. तो ये just by considering this is a main planet, this is a VIP, so it consider all the most important aspect of your life. जैसे मैंने कहा, सोल हो गया, फादर हो गया, हार्ट हो गया, आईज हो गया, these are the most important aspect of your body or the life. तो आपको अगर अच्छा है, सन का प्लेसमेंट अच्छा है आपके हॉरोस्कोप में, तो आपको ना तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना आईज की प्रॉब्लम होगी. और अगर खराब है तो नेचुरली यू आर लाइकली टू सफर, तो आपको एक्शन उसी हिसाब से लेना पड़ेगा. सन इज अ किंग. सन इज अ किंग. किंग मींस स्टेटस. तो इफ यू वांट टू गेट ए गुड स्टेटस इन योर प्रोफेशनल लाइफ, if you want to get a good status in the professional life, you have to be, sun has to be well placed in your birth chart. जब तक सन का प्लेसमेंट आपके हॉरोस्कोप में अच्छा नहीं होगा, you cannot get a good status or a status of authority as far as your professional life is concerned. तो इसलिए सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपकी लाइफ में. जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं लाइफ के, बिना सन की ब्लेसिंग के नहीं मिलते. जब तक सन आपका वेल प्लेस्ड नहीं होगा, नहीं, आपको स्टेटस मिल ही नहीं सकता. एंड सन रिप्रेजेंट द फेम आल्सो, फॉर विच एवरीबॉडी थ्राइव्स फॉर. हम लोग उसी के लिए तो भागते हैं कि अपने प्रोफेशन में हम ऐसा कुछ काम करें कि दुनिया हमको जाने. और फेम का जहां तक सवाल है, एमिनेंस का जहां तक सवाल है, स्टेटस का जहां तक सवाल है, अथॉरिटी का जहां तक सवाल है, वो बिना सन की ब्लेसिंग के आपको नहीं मिलेगी.
जब तक सन का प्लेसमेंट आपके हॉरोस्कोप में अच्छा नहीं होगा तब तक वो सारी चीजें आपको नहीं मिलने वाली हैं। आपके पास कुछ भी हो, आप कुछ भी करें, कोई भी आपकी स्किल हो, कोई भी कैपेबिलिटी हो, लेकिन फेम नहीं मिलेगा आपको जब तक सन का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा। एंड subsequently you will see that there are such a simple remedies to propitiate the sun. सन की शांति करने के लिए कोई प्रॉब्लम भी है तो आप कर सकते हो बहुत आसानी से। एंड these remedies work magically, बहुत फायदा होता है उसका। और आपको सबसे बड़ी बात यह कि आपको पता लग गया एट द टाइम ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स को पता लग गया कौन सा साइंस है, कौन सा ऐसा ज्ञान है जो आपको बता दे बर्थ के टाइम कि आपको इस ईयर में हार्ट की प्रॉब्लम होगी या इस ईयर में ये प्रॉब्लम होगी, इस बीमारी से आप सफर करेंगे। नोबडी कैन टेल। आपको प्रोफेशनल लाइफ में क्या स्टेटस मिलेगा, आप करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लेकिन जब तक सन का प्लेसमेंट ठीक नहीं होगा, यू कैन नॉट गेट फेम, यू कैन नॉट गेट अथॉरिटी, यू कैन नॉट गेट स्टेटस। तो उसके लिए जरूरी है कि सन का प्लेसमेंट आपके लिए अच्छा होना चाहिए। एंड व्हेन यू सी दैट इट्स वेरी सिंपल रेमेडीज एंड दे वर्क लाइक मैजिक। बहुत हद तक हम कंट्रोल कर लेते हैं, बट वी हैव टू टेक एक्शन एट द राइट टाइम। वी कैन नॉट वेट टिल द एंड कि हम बीमारी हो गई, हमको कैंसर हो गया, उस टाइम हम भाग रहे हैं कि उपाय करने के लिए। नो 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 एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी कैन वर्क एट दैट टाइम। यू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड दैट इज द पर्पज ऑफ दिस नॉलेज। अब ये तो सन की बात हुई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मून आल्सो। Moon, as I told you, that is a queen, second in importance. राजा के बाद रानी। और जहां तक हमारा बॉडी का सवाल है, जैसे हमने कहा कि we consist of three things: body, soul, and mind. And soul is the most important part, and that is represented by the sun. So next in importance is what? Moon. Sorry, mind. Next in importance is the mind. And moon represents your mind, actually, your mental status, your mental faculty, your mental capabilities. That is the role of moon. Or I don't know whether you remember or not, जब फैमिली में कोई भी चाइल्ड का बर्थ हुआ करता था, तो we used to rush to an astrologer, और पेरेंट्स कहते जल्दी से पूछ के आओ एस्ट्रोलॉजर से किस पाए में बर्थ हुआ है। And they were so concerned कि पाया से, कि पाया जल्दी से पूछा। We are not concerned about the horoscope, we are just concerned about the पाया, कि किस पाए में बर्थ हुआ है। So what was that पाया? Paya was nothing but the simple position of moon, whether moon is well placed in your horoscope or not. That was the purpose. क्योंकि हर किसी को मालूम है कि लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगी, लाइफ इज सफरिंग, नथिंग एल्स, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं तो वी आर एबल टू फेस दोज प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, कि अब हर प्रॉब्लम को एक टास्क समझकर उसको फेस करें, उसको सॉल्व करें और आगे बढ़ें। दैट इज हाउ यू एंजॉय द लाइफ। अगर ये सोच के चलें कि प्रॉब्लम नहीं आएगी तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मेन चीज क्या हुआ कि हमारा जो माइंड है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे अंदर मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मेंटली हम लोग बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जिससे कि कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो हम उसको आसानी से फेस कर पाए। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द मून। मून ब्लेसिंग, विदाउट मून्स ब्लेसिंग योर माइंड कैन नॉट बी स्ट्रांग, यू कैन नॉट हैव एनफ मेंटल पावर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी भी हमारी मेंटल एनर्जी है वो हमारे मून को गवर्न करती है। जितनी भी मेंटल एनर्जी है वो हमारे मून से गवर्न होती है। और आप जानते हैं कि वी हार्डली यूज अबाउट 10% ऑफ आवर माइंड कैपेबिलिटी इन आवर एंटायर लाइफ। और जितना भी हम मून को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वी आर एबल टू यूज मोर ऑफ दैट आवर मेंटल फैकल्टी। जो हम मेडिटेशन करते हैं या और भी कोई चीज करते हैं तो हम माइंड का ज्यादा यूज कर पाते हैं। और we say that we are able to open our unconscious or the subconscious mind. और लोग कहने लगते हैं कि इंट्यूशन हो गया, और इंट्यूशन का रोल है एस्ट्रोलॉजी में। इंट्यूशन इज नथिंग बट इट इज नाउ ए रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग। जो मोड ऑफ लर्निंग है परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन एंड इंट्यूशन, इट प्लेस रोल एवरीवेयर इन ऑल प्रोफेशंस until have a good intuition, and intuition is nothing but opening up of your सबकॉन्शियस और द अनकॉन्शियस माइंड। आप अपनी मेंटल फैकल्टी को बढ़ा रहे हैं, उसका वही मून काम करता है। और जैसे
सन आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है और मून हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है. तो मदर इज रिप्रेजेंटेड बाय द मून. Second is that all liquid portion in the body, watery portion in the body, that is also represented by moon. Moon हमारे जितने भी जो watery portion है उसको govern करता है. और moon हमारा क्योंकि mind को represent करता है, तो जो भी हमारे emotions होते हैं उनको represent करता है. और emotions plays a very important role in certain professions. It's only because of emotions you are able to perform well. जैसे मान लीजिए एक्टर हैं आप, तो एक्टर क्या है, यू आर पुटिंग योर इमोशंस इन द अदर कैरेक्टर, तो इमोशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर. तो मून प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जो अच्छे एक्टर होते हैं या कॉमेडियन होते हैं उनके केस में मून का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि आपको अपने इमोशंस को दूसरे कैरेक्टर में पुट करना है, तो उनके लिए मून बहुत काम करेगा. और इसलिए जो मेंटली लोग स्ट्रांग होते हैं उनके लिए मून एक जरूरी है कि मून आपका स्ट्रांग हो. और अगर मून स्ट्रांग नहीं होगा तो यू सी लॉट ऑफ लुनेटिक पर्सन्स जो डिप्रेशन में चले जाते हैं या एक मेंटली वीक होते हैं, कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं, या मेंटली बहुत वीक होते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कोई अगर और सिचुएशन होती है तो ये सब चीजें जो है मून है. और मून हम रिप्रेजेंट्स अवर मदर, माँ का सुख अगर देखना है तो हम मून से देखेंगे. और इसीलिए जो लोग थे पहले बहुत जरूरी समझते थे कि आपके हॉरोस्कोप में मून की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इवेंचुअलिटी हो, कोई एडवर्सिटी हो, तो उसको आप आराम से फेस कर पाए. तो इसलिए जो भी जिनके भी हॉरोस्कोप में मून स्ट्रांग होता है, दे आर मेंटली वेरी स्ट्रांग पर्सन्स. उसके बाद वी कम टू मरकरी. मरकरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट. और मरकरी जैसा मैंने कहा कि इट इज ए प्रिंस, इट्स ए चाइल्ड, राजकुमार है. पहली चीज तो यह बच्चा है, और कहते हैं कि बच्चे का अपना कोई नेचर नहीं होता. बच्चे को जैसी कंपनी मिलती है, जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, जैसा संगति मिलती है, ही स्टार्ट्स बिहेविंग इन दैट वे. इसीलिए हम बच्चों को हमेशा बुरी संगति से बचाते हैं. हम हमेशा कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है अच्छी संगति में रहे, जिससे उसके अच्छे संस्कार उसके अंदर आए. सेम थिंग एग्जिस्ट हियर आल्सो इन एस्ट्रोलॉजी. मून डजंट हैव इट्स ओन नेचर. Mercury doesn't have its own nature. Mercury will not do good or bad to any native. How the Mercury will behave? It all depends on the association of other planets with Mercury. अगर Mercury के साथ अच्छे planet का association है तो Mercury will give you good results, और Mercury के साथ अगर malefic planet का association है तो Mercury will also become malefic. Now, as far as your body is concerned, पहली चीज तो यह है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, which is again very important because all is neurology. We are concerned with the neurology now. All our nervous system is controlled by Mercury. आप ब्रेन से लेकर आपका स्पाइनल कॉर्ड का जो भी पोर्शन है, everything has a rulership of Mercury. अगर मरकरी आपका वेल प्लेस्ड है, देन मेंटली और नर्वस सिस्टम के हिसाब से आप स्ट्रांग होंगे, आप जल्दी से घबराएंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे. तो मरकरी जो है हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. दूसरा, मरकरी हमारी स्किन को भी रिप्रेजेंट करता है. और जितने भी जो एक्टर वगैरह होते हैं, अगर आपकी स्किन ग्लो करनी अच्छी होनी चाहिए तो मरकरी हैज टू बी वेल प्लेस्ड. अगर मरकरी अच्छा नहीं होगा तो आपकी जो स्किन जो है वो फ्लॉलेस नहीं हो सकती. इसके बाद जो मेन चीज है अबाउट मरकरी, इट रिप्रेजेंट्स आवर कम्युनिकेशन स्किल आल्सो. हाउ यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल, एंड कम्युनिकेशन मे बी बोथ बाय स्पीच और बाय इवन बाय राइटिंग आल्सो, और मे बी इन अनदर वे आल्सो. तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी है, लेट अस से यू वांट टू बी गुड ऑरेटर, you want to be a good speaker, so unless you have a blessing of Mercury, you cannot communicate well. आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते, अच्छे ऑरेटर नहीं बन सकते. और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, तो आप जैसा देखते हैं कि दे आर वेरी सक्सेसफुल इन मार्केटिंग,
दे आर वेरी सक्सेसफुल एज डिप्लोमेट्स, बहुत अच्छे डिप्लोमेट बन जाते हैं। वेरी सक्सेसफुल एज ए नेगोशिएटिंग पर्सन्स, कहीं अगर नेगोशिएशन कराना है तो आप उनको भेज दीजिए, दे विल डू वेरी वेल बिकॉज दे हैव एन एक्सीलेंट, they have command over the communication skill. They can become a very good writer also, because writer also does the same thing, he communicates. जर्नलिज्म में जाना है या और किसी तरह से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपको मरकरी का ब्लेसिंग हो, मरकरी का प्लेसमेंट आपके हॉरोस्कोप में अच्छा हो। तो मरकरी आपकी बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मेन मैंने कहा कि नर्वस सिस्टम, एंड दैट्स व्हाई ऑन दैट डे आई सेड कि डॉक्टर्स wear the green colored cloth, which is green color is the color of mercury. जैसे सन का ऑरेंज कलर है या रेड कलर है, ऑरेंज कहेंगे हम, मून का व्हाइट कलर है और मरकरी का कलर ग्रीन होता है। तो ग्रीन कलर पहनकर हम अपने नर्वस सिस्टम को भी ट्राई टू कंट्रोल इट। तो इसीलिए मरकरी और मून का जो कॉम्बिनेशन है, देखिए मून हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है और मरकरी जो है हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो ल्यूनेसी आती है या पागलपन जो आता है लोगों में, वो जब भी आ सकता है जब ये दोनों प्लैनेट ही खराब हो, एक प्लैनेट से नहीं आएगा। It has to be the combination of these two planets, both are bad in your horoscope, then only you can be lunatic, otherwise एक प्लैनेट से नहीं होगा। बहुत से लोग बहुत ही जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो भी जब भी पॉसिबल है जब आपके हॉरोस्कोप में मून भी वीक हो और मरकरी भी वीक हो। दोनों प्लैनेट वीक होने चाहिए, एक आपका माइंड है और दूसरा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम मींस यू हैव टू टेक अ डिसीजन एट दैट टाइम कि हमको क्या करना है। तो मरकरी आपका डिसीजन मेकिंग में भी बहुत फायदा करता है। इट गिव्स यू एन एक्सीलेंट कमांड ओवर कम्युनिकेशन। सच पीपल आर रियली, दे कैन इंटरेक्ट वेल, दे वंडरफुल इन कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत अच्छे राइटर बनते हैं, बहुत अच्छे ऑरेटर बनते हैं, बहुत अच्छे एक्टर बनते हैं, कॉमेडियन बन सकते हैं, कोई भी इस टाइप के लोग जो है बन सकते हैं जहां भी ये कम्युनिकेशन स्किल की हमको जरूरत होती है। और मैंने कहा कि ये बच्चा है, इसे वेरी यंग पर्सन, तो इसका अपना कोई नेचर नहीं है। जिन प्लैनेट की इसको संगति मिलती है या एसोसिएशन होता है, वैसे ही ये प्लैनेट बिहेव करने लगता है। तो ये है अबाउट Mercury. Then we come to the Mars. Mars, I told you that it is commander in chief. और जहां तक आपकी लाइफ का सवाल है, जैसे मैंने कहा कि ये सन इज द फादर, मून इज द मदर, एंड मार्स इज योर को-बॉर्न। आपके जो सिबलिंग्स होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मार्स। आपके जो भी भाई बहन हैं, वो मार्स उनको रिप्रेजेंट करता है। और मार्स, जैसे मैंने कहा, इज सेनापति, एंड सेनापति नीड्स व्हाट? Physical strength, confidence, adventure, determination. So all these things come with the blessing of Mars only. कि जब तक Mars आपका अगर well placed है, you're physically very strong, you're very adventurous, you're very confident, you can do certain thing with determination. वो सब आप कर सकते हैं बशर्ते कि मंगल आपका बहुत strong हो। और मंगल आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मून आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, मंगल आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और मंगल जो है आपका जो ब्लड है, ब्लड मैरो है, बोन मैरो, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो लिक्विड है, वाटरी पोर्शन है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मून, एंड द ब्लड पोर्शन इज, ब्लड कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लैनेट मार्स। तो मंगल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो इसका अर्थ यही होता है कि यू हैव लॉट ऑफ फिजिकल एनर्जी, यू हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, यू आर एडवेंचरस पर्सन, यू हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। और जैसे मैंने कहा, अभी बात हो रही थी कि अच्छा ऑरेटर बनने के लिए, वन इज द मरकरी। मरकरी इट गिव्स यू वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, बट इफ यू वांट टू बी अ गुड ऑरेटर, यू नीड अ कॉन्फिडेंस आल्सो, should be able to speak with confidence. तो मरकरी, मार्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए जो बहुत अच्छे ऑरेटर होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट ऑरेटर होते हैं, उनका जो आप देखेंगे कि दोनों प्लैनेट मार्स एंड मरकरी, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल, बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। अब ऐसे भी देखते हैं कि आप क्लास में जाइए और आप किसी से क्वेश्चन पूछिए, एक को आता है फिर भी नहीं खड़ा होकर बता पाता, और एक नहीं भी आता फिर भी एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है कुछ। तो दैट इज द रोल ऑफ मार्स।
कि मार्स उसका अच्छा है, मार्स इज वेल प्लेस्ड, मार्स इज स्ट्रॉन्ग, सो दैट पर्सन हैज लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो हमारी लाइफ में भी अगर हमको कॉन्फिडेंस चाहिए या वी वांट टू डू सम एडवेंचरस जॉब, तो उसके लिए मंगल का अच्छा होना जरूरी है। और इसीलिए जो मंगल जिनका वेल प्लेस्ड होता है, तो उन लोगों का प्रोफेशन भी वैसा ही होता है, पुलिस में हो, डिफेंस में हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई एडवेंचरस पर्सन हो, इस टाइप के कामों में ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं। पुलिस में जितने भी होंगे आप देखिए, जो भी आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह हैं, दे आर वंडरफुल पोजीशन ऑफ मार्स। In defense also, if you go to a higher status, then Mars will play a very important role. Mars has to be strong. So Mars is basically a planet of your physical strength, your confidence, your adventure. और हमारे जो ब्लड है उसको रिप्रेजेंट करता है। जितने भी हमारे एक्सीडेंट होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, वुंड्स होते हैं, ब्लड बाहर निकलता है, all those things are represented by the planet Mars. Then we come to planet Jupiter. It's a very important planet, Jupiter. And Jupiter को मैंने कहा कि it has been assigned a certain role in the state, in the matter of state. It is concerned with the religious and spiritual matter of the state, religious and the spiritual matters. और एस्ट्रोलॉजी में हम इसको गुरु मानते हैं, इसको गुरु भी कहते हैं जुपिटर को, या बृहस्पति भी बोलते हैं। तो ये हमारा गुरु है। और आप देखिए कि whenever we go to our guru, what do we expect from him? हम गुरु से कभी नहीं कहते कि गुरुजी हमें गाड़ी दे दो, पैसा दे दो, मकान दे दो, शादी करा दो। We never say like that, क्योंकि हम जानते हैं कि गुरु के पास कुछ नहीं है देने के लिए। What we say whenever we go to the guru, what we say कि गुरुजी we need your blessings. आप अपनी ब्लेसिंग हमारे ऊपर बनाए रखिए, दैट्स ऑल, वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। कि आपकी ब्लेसिंग बनी रहे, बस, हम आपसे और कुछ नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट वी से विद द गुरु। सेम रोल वी हैव टू कंसिडर ऑफ दिस प्लैनेट आल्सो, कि ये ऐसा प्लैनेट है, इट्स लाइक ए गॉड। जैसे हम कहते हैं कि प्रोविडेंशियल हेल्प मिल जाती है हमको, we get the blessing of God, कि कोई प्रॉब्लम आती है तो suddenly we get the help from the God, actually providential help मिल जाती है हमको। वही रोल एग्जैक्टली जुपिटर का यहाँ पर है। जुपिटर को कहा भी जाता है कि जिस हाउस में ये बैठा हुआ होता है, उस हाउस के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया इसको। You never want that your guru or some monk or some saint should come and stay in your house. You never want that. और वही पोजीशन यहाँ पर है कि कहा गया कि गुरु जिस हाउस में बैठता है उसको खराब करता है। वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल, बट जो लिखा गया हमारी किताबों में उसमें ये कहा गया कि गुरु जिस हाउस में बैठता है उसको अच्छा नहीं करता, बिकॉज इट डजंट प्रमोट एनी मैटर ऑफ मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, क्योंकि इट्स नॉट कंसर्न विद द मटेरियल एस्पेक्ट, इट इज कंसर्न ओनली विद द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो इसलिए गुरु जिस भी हाउस में बैठता है वो हम नहीं कहते कि हमारा बहुत अच्छा हाउस है या उस हाउस के लिए वो अच्छा प्लैनेट है, बट वी नीड द ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मीन्स के एस्पेक्ट। अगर हमारा किसी भी हाउस के ऊपर गुरु का एस्पेक्ट है, देन वी आर वेरी हैप्पी, दैट हाउस विल प्रॉस्पर, दैट हाउस विल गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट्स, बट वी डोंट वांट दैट गुरु शुड बी प्लेस्ड इन दैट हाउस। और ये बहुत अच्छी तरह लिखा गया कि गुरु जिस हाउस पे प्लेस्ड होता है आपके बर्थ चार्ट में, उसके लिए बहुत अच्छा नहीं करता, रादर इट इज अनकंसर्न्ड विद दैट हाउस, इट इज अनकंसर्न्ड विद दैट हाउस। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि गुरु जो है एक ज्ञान का प्लैनेट है, नॉलेज का प्लैनेट है, और नॉलेज बहुत है। एक ब्लेसिंग अगर उसकी मिलती है तो हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, सब कुछ सुख शांति से गुजरता है, we have prosperity in the life। और अगर गुरु की ब्लेसिंग नहीं होती है या ईश्वर की ब्लेसिंग हमारे पास नहीं होती है तो हम सफर करते हैं, हमारा भाग्य भी हमारा साथ नहीं देता। तो इसलिए जुपिटर का रोल, if we consider in that sense, then it becomes very easy, because एक बार आपको ये प्लैनेट का रोल समझ में आ जाए
So normally people say that Jupiter is placed a wonderful planet. It will do very good for this house. But no, Jupiter is not that type of planet. It is not concerned with the material aspect of the life. It can't give you any material gain. Then how it can be a good planet for that house? It can't be. क्योंकि material gain से मतलब ही नहीं है उसका. लेकिन जैसा मैंने कहा कि ब्लेसिंग, और ब्लेसिंग हम एस्ट्रोलॉजी में एस्पेक्ट से कंसिडर करते हैं. जब एस्पेक्ट करता है तो हम कहते हैं कि गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है. उस हाउस जिसके ऊपर गुरु एस्पेक्ट कर रहा है, दैट हाउस प्रॉस्पर्स लाइक एनीथिंग. प्रॉस्पेरिटी अपने आप आएगी जब उसका एस्पेक्ट होगा, ना कि बैठने से बल्कि उसके एस्पेक्ट होने से. और गुरु हमारा नॉलेज का भी कारक है, तो इसलिए जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं या किसी भी टाइप की हमें कोई इवन लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, और प्रॉस्पेरिटी आपको हर स्टेज पर चाहिए, तो वी नीड द ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर एट एवरी स्टेज. और यहाँ तक कहा गया कि अगर फीमेल के केस में जुपिटर अगर मैरिज हाउस ऑफ मैरिज में बैठ जाता है तो उसको सत्यानाश कर देता है, उसको मैरिज को पूरा खराब कर देता है. बिकॉज जुपिटर इज नॉट कंसर्न विद द सेंसुअल प्लेजर्स. भोग स्थान में बैठना उसका सबसे खराब पोजीशन मानी गई. इट्स नॉट अ प्लैनेट ऑफ सेंसुअल प्लेजर. तो जुपिटर का रोल जब हम स्टडी करेंगे डिटेल में, तो वी हैव टू सी इन दैट सेंस कि जुपिटर हमें क्या दे सकता है, हमें क्या चाहिए जुपिटर से, क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए. सिंपल सी बात है कि जो हमारे मटेरियल एस्पेक्ट होते हैं उनसे गुरु का कोई कंसर्न नहीं होता. गुरु इज अनकंसर्न्ड अबाउट material aspect of the life. It is concerned only with the spiritual aspect, and that is knowledge or the spiritual knowledge. तो इसीलिए हम लोग जुपिटर का किसी हाउस में प्लेसमेंट होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जिस हाउस को जुपिटर एस्पेक्ट करता है वो आपके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं, या हमें उन हाउसेस में प्रॉस्पेरिटी मिलती है. इसके अलावा भी गुरु, जहां तक हमारी बॉडी का सवाल है, इट रिप्रेजेंट्स द फैट पोर्शन इन द बॉडी. जो भी बॉडी में फैट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है. और अगर आप सोलर सिस्टम में देखें तो कहा जाता है कि गुरु इज द हैवीएस्ट प्लैनेट, जुपिटर इज द हैवीएस्ट प्लैनेट. इट इज मोर देन सम ऑफ द वेट ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स. इट हैज अबाउट 80 सैटेलाइट्स. It in itself is a complete solar system. It's such a heavy planet. तो इसलिए हमारा अगर किसी का लग्न में जुपिटर बैठ जाता है तो वो व्यक्ति मोटा हो जाता है, हैवी हो जाता है, क्योंकि लग्न हमारा शरीर है एंड जुपिटर इज अ वेरी हैवी प्लैनेट. तो उस टाइप का इसका नेचर बन जाता है. तो ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन डिटेल, बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज इन ब्रीफ, सो दैट once you understand the basic nature of this planet, then आपको इसको expand करना बहुत आसान होगा, and then it will be just a common sense for you making prediction. Now we come to the Venus. Venus मैंने कहा कि is a main minister in the planetary cabinet. It is next to the king. Next to the king. And जो we can say that Venus is also a part of royal family. क्योंकि he doesn't have any other specific duty assigned in the matter of state. It's a general, it's number 2 in command. So he's a planet of sensual pleasures. जितने भी हमारे लाइफ में भौतिक या मटेरियल कंफर्ट की जब हम बात करते हैं, लग्जरीज की बात करते हैं, तो दे आर ऑल गवर्न्ड बाय वीनस ओनली. अगर हमें लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ में हमें ऑल कंफर्ट्स मिलने हैं, सारी फैसिलिटी मिलनी है और सारे सेंसुअल प्लेजर्स मिलने हैं, तो ये जरूरी है कि हम वीनस का हमारी ब्लेसिंग हो हमारे ऊपर. तो वीनस जो है सारे सुख सुविधाओं का कारक है. लाइफ में जितने भी एंजॉयमेंट हैं, जितने भी कंफर्ट्स हैं, जितने भी मटेरियल गेन्स हैं, दे कम विद द ब्लेसिंग ऑफ मार्स. तो ये एक एंजॉयमेंट का प्लैनेट है, कंफर्ट्स का प्लैनेट है, लग्जरीज का प्लैनेट है. और जब तक ये प्लैनेट स्ट्रांग नहीं होगा आपके, और आपको ये सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती.
आप नॉर्मल फैमिली में देखिए, एक बहुत अच्छे रिच लोग हैं, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि वहाँ जो लेडी होती है हाउस की, शी हैज टू डू एवरीथिंग हरसेल्फ, शी डजंट गेट ए गुड हेल्प। एक होता है कि बहुत ऑर्डिनरी फैमिली है, बट वहां पर दे गेट वेरी गुड हेल्प, एंड द लेडी ऑफ द हाउस शी डजंट डू एनीथिंग एट ऑल। एक का वीनस अच्छा है, एक का वीनस खराब है। अगर वीनस आपका अच्छा है तो आपको अपने आप मिल जाएगी अच्छी हेल्प, आपके सारे कंफर्ट्स वीनस विल टेक केयर ऑफ। लेकिन अगर वीनस आपका खराब है तो कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परेशान होना पड़ेगा, कोई आराम नहीं मिलेगा आपको। वैसे भी आप देखिए, अगर आपका कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मान लीजिए फैक्ट्री है आपकी, एक फैक्ट्री का ओनर होता है कि अपने इसी कमरे से बाहर नहीं निकलता, he will never come out and go to the workshop। एक होता है कि वो जब तक 3-4 घंटे मजदूरों के साथ काम नहीं करेगा, उनको समझाएगा नहीं, जब तक उसको मजा ही नहीं आता। So this is built up in the basic nature, and why? Because one has a strong Venus and another is not having a strong Venus। तो जितने भी हमारे लाइफ में सेक्स हो, एंजॉयमेंट हो, कंफर्ट्स हो, लग्जरीज हो, जब तक वीनस की ब्लेसिंग नहीं होगी, जब तक हम ये सब एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए वीनस का स्ट्रांग होना, क्योंकि ऑल आफ्टर ऑल वी आर ऑल कंसर्न्ड विद द मटेरियल कंफर्ट्स, ऑल लग्जरीज, तो वीनस का जब तक ब्लेसिंग नहीं होगा, जब तक हमको कुछ नहीं मिलने वाला। और इसीलिए वीनस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड पर्टिकुलरली in the case of males it becomes the karak for the marriage also, significator for the marriage also। all relations with the opposite sex, all enjoyment, all luxuries, all comforts, they are signified by the planet Venus। अगर हम Saturn की बात करें, again it's a wonderful planet, it's a really good planet, but हम लोग बहुत घबराए हुए होते हैं शनि से, और शनि के मंदिरों में आप देखते हैं कि भीड़ लगी रहती है और हम लोग बहुत परेशान होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि शनि हमें, हमारा जो है प्लैनेटरी कैबिनेट में सर्वेंट है। सर्वेंट क्या करता है? मेहनत करनी पड़ती है उसको, फिजिकल लेबर करना पड़ता है उसको। सर्वेंट ही करेगा, जो भी लेबर क्लास होगी वही करेगी। तो शनि रिप्रेजेंट्स दैट सर्वेंट, और यू कैन सी द लेबर क्लास। तो पहली चीज तो ये है कि अगर शनि आपका somehow connected with the lagna, maybe the first house that we will discuss, but then you have to work hard throughout the life। अगर शनि जो आपका सिग्निफिकेंट प्लैनेट है आपके हॉरोस्कोप में, तो आप किसी पोजीशन में आप पहुंच जाइए, आपको नौकरों की तरह ही काम करना पड़ेगा। यू मे बी एट एनी पोजीशन, बट क्योंकि शनि जो है वो कारक है काम का, तो लेबर का, तो आपको जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है। और देखिए, जिन व्यक्तियों का शनि लग्न में होता है, उनके पास कितना भी पैसा हो जाए, कोई भी स्टेटस मिल जाए, कोई भी पोजीशन मिल जाए, तो आप देखेंगे कि दिन रात उनको काम करना पड़ता है। हम कहते हैं कि वो जिंदगी भर उनको बोझ ढोना पड़ेगा ही, उससे आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, आप कुछ भी करेंगे तो। शनि हमारे सारे दुख दर्दों का कारण है। जितनी भी लाइफ में मिजरीज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्डल्स होती हैं, दे आर ऑल सिग्निफाइड बाय द प्लैनेट सैटर्न। तो कहा कि शनि हमारे सारे दुख दर्दों का कारण है। दुख दर्दों का कारण क्यों है? शनि, अगर आप once you understand the basic nature of this planet, then you will find that it's a wonderful planet। Why is the cause of all the problems, all the miseries in the life? Because Shani wants you to remain under discipline। Shani wants you to put your ego under control। शनि चाहता है कि आप एक अच्छे इंसान बनो, और आप अच्छे इंसान नहीं बनते हैं, आप उससे डाइवर्ट होते हैं, इसलिए शनि आपको परेशान करता है। अगर आप खुद ही अपने आप ही एक जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लाइफ के प्रति, जो भी आपको करना है उसको आप सिंसियरली करेंगे, तो शनि विल नेवर से एनीथिंग टू यू।
आप लाइफ को डिसिप्लिन रखिए, आप अपनी ईगो को कंट्रोल में रखिए, शनि कभी आपसे कुछ नहीं कहेगा। आप कभी गुरुद्वारे में जाइए, जैसे जाते हैं गुरुद्वारे में, व्हाट यू फाइंड देयर कि जब हम जूते उतारते हैं अपने, एंड दो शूज आर टेकन बाय सम पीपल एक्चुअली, वो हाथ से उनको पकड़ते हैं, और कभी उनकी तरफ ध्यान करिए आप, व्हाट टाइप ऑफ पीपल दे आर। दे आर हाईली wealthy people, very rich people. They have a very high status as far as their professional life is concerned. और जूते आपके पकड़कर पहले आपके माथे, अपने माथे पर लगाएंगे। आपने कहीं देखा है किसी और मंदिर में? और जब आप वापस आते हैं दर्शन करने के बाद, तो वही लोग अपने हाथ से आपके जूतों को पॉलिश करके देते हैं। Why they do all these things? इस प्रोसेस में क्या किया उन्होंने? अपनी ईगो को बिल्कुल ही जमीन पर ला दिया। There is no ego in them now. जब आपने किसी के जूते पकड़कर अपने माथे पर लगा लिए और आप उनको पॉलिश करके उसको वापस कर रहे हैं, तो आपकी ईगो कहाँ गई? ईगो खत्म हो गई आपकी। तो शनि उनका क्या करेगा? शनि कुछ नहीं कर सकता। And I tell you that Shani is the only planet which gives you status, high status in the professional life. बिना शनि की ब्लेसिंग से जो भी मिनिस्टर हो, ब्यूरोक्रेट हो, बिजनेसमैन हो, अगर आपको हाई स्टेटस मिलना है तो शनि की ब्लेसिंग जरूरी है। विदाउट ब्लेसिंग ऑफ सैटर्न यू कांट गेट ए हाई स्टेटस। और जब उन्होंने अपनी ईगो को कंट्रोल में कर लिया पूरी तरह से, तो शनि विल नेवर सी एनीथिंग। एंड दीस पीपल दे कीप ऑन प्रॉस्परिंग आल्सो। आप उनका लाइफ का स्टाइल देखिए, डे बाय डे दे कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, दे गो, देयर ट्रैजेक्टरी इज ऑलवेज हायर। एक दूसरे लोगों को देखिए क्या करते हैं कि जब शनि की दशा है एंड शनि इज वेल प्लेस्ड इन देयर हॉरोस्कोप एंड दे गेट सच ए गुड पोजीशन। बहुत से आपने बिजनेसमैन को देखा होगा कि जैसे ही शनि की दशा आती है और शनि अगर उनका वेल प्लेस्ड होता है आपकी हॉरोस्कोप, उनके हॉरोस्कोप में, तो सडनली दे गेट ए जंप इन देयर प्रोफेशनल लाइफ एंड दे गेट ए वेरी हाई स्टेटस। सडनली देखेंगे बहुत अच्छी पोजीशन उनकी बिजनेस में हो गई। व्हाट दे स्टार्ट डूइंग? शनि कहता है अपनी ईगो को कंट्रोल करो, लाइफ को डिसिप्लिन उसमें रखिए, लेकिन वो क्या करते हैं? वो पैसा आ गया, दे स्टार्ट थ्रोइंग कॉकटेल पार्टीज, दे स्टार्ट थ्रोइंग कॉकटेल पार्टीज। और शनि जो हार्ट लिकर ड्रिंक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सैटर्न। शराब जो है वो शनि की वस्तु है, और शनि जिसकी वजह से आप बने थे उसका रेस्पेक्ट करने के बजाय आपने उसी की चीजों को फेंकना शुरू कर दिया, लोगों को लुटाना शुरू कर दिया। And what you will find that within a few years they come back to the same position. They will not prosper like other people that I give you the example. कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में ऐसे लोग फिर वापस उसी पोजीशन में आ जाते हैं, क्योंकि आपने उसकी रेस्पेक्ट नहीं की। शनि ने जो आपको दिया सब कुछ। शनि एक डिसिप्लिन का प्लैनेट है। शनि वांट्स दैट यू शुड रिमेन ए डिसिप्लिन लाइफ। और जब भी अगर आप लोग या हम लोग एक लाइफ को डिसिप्लिन वे में जीते हैं, तो आप देखिए कभी उनको शनि के मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यू डू योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यू टेक केयर ऑफ व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड, देन शनि विल नेवर से एनीथिंग टू यू। और जब हम दशाएं आती हैं, you will find that after Jupiter the period of Saturn comes. जुपिटर में जो आपने बहुत अच्छा देखा सब कुछ, और आप सोचने लगे कि मैं इतना कैपेबल हो गया कि मैं कितना कमा लिया, मैं किस पोजीशन में पहुंच गया, मैंने इतनी तरक्की कर ली। Perhaps it is all because of my capability. तो ईश्वर ने कहा कि नहीं, that is not because of you. और उसके इमीडिएटली बाद सैटर्न की दशा शुरू हो जाती है, और कहते हैं कि जैसे ही सैटर्न की दशा शुरू होती है आदमी पागल हो जाता है, एक तरह से बिल्कुल मैड।
और जैसे ही जो शनि का पीरियड होता है उस टाइम वो करीब 3 साल का होता है, और उसमें कहा गया कि शनि का प्लेसमेंट कैसा भी हो आपके हॉरोस्कोप में, लेकिन जब शनि की दशा शुरू होगी तो आपकी लाइफ में ऐसा जोल्ट आएगा कि आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि क्या हो रहा था मेरे साथ और क्या हो गया। अभी तक तो मैं इतना अच्छा आदमी था और अब एकदम से क्या हो गया, अब लोग कैसे बिहेव करने लगे मेरे साथ, जो लोग मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे थे एक दिन में क्या हो गया। और हम लोगों की किताब है मानसागरी, उसमें बहुत अच्छा लिखा भी है, एक श्लोक लिखा है कि बंधु दार सुतार्था नाम नाशम व पीर्णम भवेत विदेश गमनम दुखम सौरे स्वांतर संस्थिते। कि मतलब बंधु दार सुतार्था नाम, आपके भाई बंधु हो, आपका स्पाउस हो, आपके बेटा हो, सबके सब आपके साथ अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं। और विदेश गमनम दुखम सौरे, मतलब आपकी इच्छा होती है कि मैं घर से छोड़ के भाग जाऊं, और दुख साथ नहीं छोड़ता आपका। स्वांतर संस्थिति, और मतलब आपकी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। एंड दैट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ सैटर्न इन योर हॉरोस्कोप, एंड दैट इज द रियलिटी। गॉड वांट्स कि अंडरस्टैंड द रियलिटी। व्हाट यू हैव सीन वाज नॉट बिकॉज ऑफ योर कैपेबिलिटी। और आपने समझ लिया अगर ये सब चीजें, तो अपनी ईगो को उस टाइम आपने कंट्रोल कर लिया, लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में जीना शुरू कर दिया, तो सैटर्न की दशा आपकी बहुत अच्छी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी लाइफ में। और सैटर्न जैसे कहा कि एक मैलिफिक प्लैनेट तो है, ये सारे दुखों का कारक तो है ही है, तो परेशानियां भी देता है लाइफ में। अगर स्टेटस देता है तो साथ में परेशानियां भी देता है, और परेशानियां सिर्फ इसीलिए देता है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में जिए, अपनी ईगो को, अहंकार अपना खत्म कर दो अपना। और एक बार आपने अहंकार अपना खत्म कर दिया, अपनी ईगो को कंट्रोल में कर दिया, लाइफ को डिसिप्लिन वे में जीना शुरू कर दिया, तो शनि बिकम्स ए वंडरफुल प्लैनेट। इट हेल्प्स यू लाइक एनीथिंग, इट कैन टेक यू टू द टॉप। लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग, बहुत से लोग आते हैं हम लोगों के पास कि उनका शनि की दशा जस्ट शुरू हुई और इतनी अच्छी पोजीशन में है कि जैसा भी हुआ क्या हमारे साथ, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में everybody used to give so much of respect, और एक दिन में everybody is against us। वो होता है क्योंकि वो शनि की दशा शुरू होगी तो ऐसा होगा ही उसमें। जो है आप समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो और ज्यादा परेशान होंगे, फिर आप चक्कर लगाते रहिए शनि मंदिरों के, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप ईगो को कंट्रोल नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा कि सन रिप्रेजेंट्स योर फादर, मून रिप्रेजेंट्स योर मदर। हम अपने फादर और मदर की रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन इलाज कराने के लिए, उपाय करने के लिए वी कैन गो अराउंड द वर्ल्ड इन ऑल द टेम्पल्स, वी कैन स्पेंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज, बट जो घर में बैठे हुए आपके मदर एंड फादर है उनको रेस्पेक्ट नहीं करते। मैं कहूंगा आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, कितना भी बड़ा उपाय कर लीजिए, अगर आपने अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं की तो सन एंड मून कैन नेवर बेनिफिट यू, वो आपको परेशान ही करेंगे। और ऐसा हो भी रहा है कि हम जो इतनी सिंपल रेमेडीज हैं, एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं कहता कि आप मंदिरों में भागो, बहुत बड़े बड़े दान करो, नो, बेसिक थिंग, आप अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करो। और सिखाया भी जाता था शायद हमको पहले कि जब हम सुबह उठते थे कि माँ बाप के पैर छू अपने, तो एक संस्कार एक पैदा होते थे, हम अपने आप जो है वो अपने आप ही रेस्पेक्ट करने लगते थे। बट आजकल वो खत्म हो गया और हम बहुत बड़े बड़े उपाय करने को तैयार हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाने को तैयार हैं, बड़े बड़े डोनेशन करने को तैयार हैं, लेकिन घर में जो अपने मदर फादर उनको खाना भी नहीं खिलाएंगे। तो शनि जो है एक, मैंने कहा कि इट रिप्रेजेंट्स योर सर्वेंट्स, सर्वेंट है शनि। जो भी मतलब मेहनत करने वाले लोग हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सैटर्न। तो अगर आप इन लोगों के साथ एक, आई वोंट से रेस्पेक्टफुली, बट एक प्रॉपर बिहेवियर तो करना पड़ेगा आपको। प्रॉपर बिहेवियर मतलब कि आप अननेसेसरीली उनको गाली मत दीजिए, अननेसेसरीली मिसबिहेव मत करिए उनके साथ।
उनका कम से कम हक मत मारिए, या कोई पैसा उनके पास ड्यू है या कुछ और चीज ड्यू है और आप उनको लटकाते रहें। तो इतना सच ए सिंपल रेमेडी कि आपके जितने भी जो हेल्प्स हैं, हेल्पर हैं, उनके साथ आप एक अच्छा व्यवहार करिए, दैट्स ऑल। मिसबिहेव मत करिए, गाली मत दीजिए उनको। और अगर आपने वो नहीं किया तो करते रहिए आप उपाय, कितने मंदिर में आप जाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। तो एस्ट्रोलॉजी तो कहता है कि आपके घर में ही है सब कुछ उपाय, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो उल्टा रहा है कि हम घर की तरफ तो देखते भी नहीं है और बाहर घूमते रहते हैं, बड़े बड़े उपाय करते रहते हैं, और अल्टीमेटली कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बेकार है, ये कुछ फायदा तो होता नहीं है इन उपायों से। अल्टीमेटली ब्लेम कम्स टू दिस नॉलेज ओनली। बट अगर आप शनि के लिए सिर्फ अपने जो नौकर चाकर हैं घर में, उनके साथ एक मिसबिहेव मत करिए, कम से कम उनका हक मत मारिए, उनको अननेसेसरीली परेशान मत करिए। शनि विल नेवर से एनीथिंग टू दैट। शनि आपको कभी कुछ नहीं कहेगा। दूसरा, शनि के बारे में कहा गया कि इसे लेम प्लैनेट, लंगड़ा प्लैनेट है। लंगड़ा क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे ही शनि की दशा शुरू होती है, या कभी भी आपकी लाइफ में शनि का अगर मेलिफिक इफेक्ट होता है, तो इट स्ट्रेट अवे अफेक्ट्स योर मोबिलिटी। आप देखिए, आपकी साढ़े साती हो या शनि की दशा हो, आपकी मोबिलिटी खत्म हो जाती है। मोबिलिटी खत्म हो जाती है कि कभी पैर, कमर, घुटने में दर्द हो जाएगा, कभी कमर में दर्द हो जाएगा, और आपको लगेगा कि मैं चलने फिरने में एकदम से बाधा आ गई, प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इसीलिए इसको कहा कि इट्स ए लेम प्लैनेट, क्योंकि इट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर मोबिलिटी। आपकी मोबिलिटी को कम करता है जब शनि का जो कोई भी इफेक्ट खराब होता है। तो शनि इज द प्लैनेट ऑफ जस्टिस आल्सो। जैसे मैंने कहा था कि हम कोर्ट में ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, तो पहली चीज तो था कि इट्स ए प्लैनेट ऑफ जस्टिस, एंड सेकेंडली इट्स ए प्लैनेट ऑफ डिले। शनि शनि कहते हैं कि ये धीरे धीरे काम करता है। जैसे मंगल इज ए वेरी फास्ट एक्टिंग प्लैनेट, बट शनि इज ए वेरी स्लो एक्टिंग प्लैनेट, और शनि इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट इन द जोडियक आल्सो। जोडियक में भी जो है ये शनि की जो स्पीड होती है वो सबसे कम होती है। तो शनि जो है हर चीज को आराम आराम से करता है, जल्दीबाजी में नहीं करेगा कभी भी, पूरा सोच विचार के जब भी करेगा। और इसीलिए कि एक तो जस्टिस का प्लैनेट तो है ही है कि जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड, एंड सेकेंडली वी कांट मेक डिसीजन इन द हेस्ट, बिकॉज ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ इन द कोर्ट। हम आराम से सोच विचार करके, हर एस्पेक्ट को कंसिडर करके अगर डिसीजन लेंगे, तो वही पर्पस है काले रंग के कपड़े पहनने का। तो इस तरह से जो है शनि हमारा, एक जैसे मैंने कहा कि एक दुखों का कारण तो है ही है, बट दुखों का कारण सिर्फ इसीलिए है कि इट वांट्स दैट आप अपनी लाइफ को ठीक रखो। और जितने भी जो साढ़े साती होती है, या जितने भी आपने सुना होगा ढैया वगैरह होती है शनि की, दे आर जस्ट द वार्निंग। आपको वार्निंग मिलती है कि आप ठीक हो जाइए, और अगर आप अपने आप ठीक हो जाते हैं तो देन नाइदर ढैया विल से एनीथिंग नॉट द साढ़े साती विल से एनीथिंग। लेकिन आप अगर अपनी राह पर चलते रहे बिना सोचे विचारे, तो आपको ठीक हो जाते हैं फिर आप उस कंडीशन में जो है। तो शनि की दूसरा काम है कि शनि जो है इट पुट्स ए प्रेशर, एक प्रेशर बनाता है। जब भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, whenever you make any decision, then the role of Saturn becomes very important. कि शनि आपको एक फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा डिसीजन लेने के लिए। जैसे हम लोग मैरिज करने के लिए जाते हैं, तो वी कीप ऑन लुकिंग फॉर नंबर ऑफ बॉय एंड द गर्ल एक्चुअली, और डिसीजन नहीं ले पाते कि हम इससे शादी करें, उससे शादी करें, क्या करें, और कंफ्यूज रहते हैं पूरे। तो जब शनि का कोई ऐसा प्लैनेट का रोल आता है उसमें, एंड व्हेन द सैटर्न पुट्स द प्रेशर, तो आप इमीडिएटली डिसीजन ले लेते हैं। तो शनि प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग डिसीजन आल्सो।
जब तक शनि एक्ट नहीं करेगा या शनि का रोल नहीं होगा, जब तक आप लाइफ में डिसीजन नहीं ले सकते। और जैसा मैंने कहा कि प्रेशर अप्लाई करता है, और जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज। और कुछ लोगों में जब जुपिटर और सैटर्न का संबंध बनता है, then that person goes into the depth of the knowledge। हम रिसर्च की बात करते हैं, इन्वेंशन की बात करते हैं, या बहुत ही ज्ञानी पुरुषों की बात करते हैं। That is because of the combination of Jupiter and the Saturn, because Jupiter is a planet of knowledge and Saturn applies pressure on that. You become more knowledgeable. You go into the depth of the knowledge. ऐसे ही जब मून के आसपास सैटर्न आता है तो इट पुट्स प्रेशर ऑन द माइंड। जैसे मैंने कहा कि 7.5 में यही होता है, हम लोग बाद में बात करेंगे, बट 7.5 इज नथिंग बट whenever the moon comes, whenever the Saturn comes near to the mind, it applies pressure on the mind। और माइंड में प्रेशर अप्लाई करेगा तो आप टेंशन में आ जाते हैं, दुखी होने लगते हैं। अब सैटर्न दो तरह से काम कर सकता है कि मान लीजिए कि मून आपका बहुत वीक है, मेंटली यू आर ए वीक पर्सन, और प्रेशर अप्लाई हुआ उसके ऊपर, तो क्या होगा? एक अगर वीक चीज है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा तो क्या होगा? टूट जाएगी। मेंटली आप ऑलरेडी वीक हैं और उसके ऊपर आपका प्रेशर और पड़ गया तो यू गो अंडर डिप्रेशन, मेंटली और आपको परेशानी होने लगती है। और वही अगर मून बहुत स्ट्रांग है किसी का, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा तो क्या होगा? माइंड विल बिकम मोर फर्टाइल, और जितने भी जो अच्छे डिसीजन होते हैं, रिसर्च होती हैं, वो ऐसे टाइम में हो सकती हैं कि आपका माइंड बहुत फर्टाइल है और किसी ने आपको धक्का दिया थोड़ा सा भी, तो आप बहुत अच्छे काम भी कर सकते हैं। तो ये जो कहा जाता है कि सैटर्न की दशा है या 7.5 है, ये खराब ही होती है, नहीं, कोई चीज ज्योतिष में खराब अच्छी नहीं है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट। तो इसलिए ये कहना कि शनि खराब है या 7.5 खराब है या जुपिटर अच्छा है, दैट इज नॉट करेक्ट। एनी प्लैनेट कैन बी गुड और बैड, and it will entirely depend on the position of that planet in your birth chart. So I think we stop here, and I give you a chance to ask questions now in case you have any doubt, any clarification. So you are requested to come up. Sir, you said about Saturn that Saturn in horoscope will make you work. So will positive Saturn make us work more, or will negative Saturn make us work more? Both. That is the basic nature of Saturn. देखिए, जब आप horoscope देखेंगे, you'll find a lower class also has Saturn in the Lagna, first house. And even a prime minister or the president will have the Lagna in the same position. What is the difference? Difference is one is having a malefic Saturn, one is having a benefic Saturn. But आप देखेंगे दोनों का नेचर एक सा ही होगा बिल्कुल। एक तो नेगेटिव है तो बोझा ढो रहा है बट आगे नहीं बढ़ पाया, स्टेटस नहीं मिला उसको। लेकिन दूसरा भी बोझा ढो रहा है, वो भी सेम मेहनत कर रहा है, लेकिन उससे वो आगे प्रोग्रेस कर रहा है। धीरे धीरे ऐसे लोग जब जिनका सैटर्न लग्न में उच्च वगैरह का होता है, एक्सॉल्टेड होता है, यू फाइंड दे डू वेरी हार्ड वर्क एंड दैट हार्ड वर्क पेज टू देम, दे प्रोग्रेस विद दैट हार्ड वर्क। जबकि लेबर क्लास नहीं कर पाते क्योंकि उनका शनि अच्छा नहीं है। एंड जैसा मैंने कहा कि शनि इज द प्लैनेट ऑफ स्टेटस, and only with the blessing of Saturn you can get a good status in the professional life। और इसीलिए कहा भी जाता है कि सन हमको अथॉरिटी देता है और शनि स्टेटस देता है। तो अगर हम गवर्नमेंट में बात करें ब्यूरोक्रेट्स की या हायर स्टेटस के लोगों की, और इवन अगर पॉलिटिक्स में भी बात करें, अगर आपको मिनिस्टर बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो इट इज नेसेसरी दैट बोथ द प्लैनेट शुड बी स्ट्रांग, सन एज वेल एज सैटर्न। सन अथॉरिटी देगा और सैटर्न देगा स्टेटस। आप देखिए एक ट्रैफिक का इंस्पेक्टर है, खड़ा हुआ है बाहर क्रॉसिंग पर, उसके पास क्या है? उसके पास बहुत अथॉरिटी है, किसी भी गाड़ी को रोक लेता है, वो है नहीं अथॉरिटी उसकी, आपको चालान कर देगा, किसी को भी रोक सकता है वो, लेकिन स्टेटस नहीं है।
Saturn is not helping, but Sun may be good in that case. So with the Sun, he got the authority. But if you want to get status, then Saturn has to be equally strong. Okay, sir. Okay. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Sir, another question regarding Saturn. I have seen in the sign chart कि Saturn sign is somewhat similar to Jupiter sign. So is there any relation into that? No, these are entirely different. अभी तो हमने देखा Saturn और Jupiter का sign. If you want, I can show you again. Yes. It's not same. It's somewhat inverted in a different angle. नहीं नहीं, एक बताता हूँ मैं आपको. This is the sign of Jupiter. Right. This is जो मैंने कहा था कि डॉक्टर RX लिखते हैं, तो just add a denda here actually. So it becomes RX. Yes. But Shani Okay. is a different one. It's not the same. Okay. बिल्कुल अलग है, उल्टा है बिल्कुल उसका. हाँ जी. जैसे Okay. Jupiter is a planet of prosperity. सब अच्छे ही अच्छा करता है. ये उसका उल्टा है, ये बुरा ही बुरा करता है सबका. Okay. Yeah, it's a hard taskmaster. Okay, sir, a question over here. आपने एक वर्ड यूज किया अभी यहाँ पे लग्न. हाँ, लग्न में डिस्कस बिकॉज जैसे हम लोगों ने अभी 12 साइन की बात की, तो ऐसे ही 12 हाउसेस होते हैं, 12 भाव बोलते हैं, और फर्स्ट हाउस इज नोन एज द लग्न. दैट वी विल डिस्कस अभी आगे जब हम करेंगे. तो दैट इज द फर्स्ट हाउस व्हिच रिप्रेजेंट्स योर बॉडी. ओके ओके. अच्छा, अभी आपने सैटर्न डिस्कस किया, इसमें एक जगह आपने बोला इट इज अ प्लैनेट ऑफ डिले, और Correct. एक जगह आपने बोला इट इज अ प्लैनेट ऑफ प्रेशर व्हिच पुट्स प्रेशर. इट्स प्लैनेट ऑफ पुटिंग प्रेशर, राइट. सेटिंग टू, हाँ, तो दोनों एक या तो वो डिले करेगा या वो डिसीजन मेकिंग, तो दोनों कैसे एक्ट करेगा, अलग अलग पोजीशंस पे करेगा या कैसे? नहीं, डिले मींस कि आपके काम में डिले करता है. आपका अगर कोई भी काम होने वाला है और उस टाइम अगर आपका सैटर्न वगैरह का पीरियड चल रहा है या सैटर्न से आप इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो आप देखेंगे आपके काम टाइम से नहीं होंगे, हर काम में डिले होगा. और लेकिन जहां तक डिसीजन मेकिंग इज द एंटायरली डिफरेंट एस्पेक्ट. अच्छा. So, sir, can we infer कि अगर किसी के लग्न में Saturn है, that person is going to be. हेलो. So, sir, can we infer that if a person has Saturn in Lagna, he is. Yeah. बोलिए, आई थिंक क्या हुआ. हेलो. Sir, am I audible? Now you are audible actually. हाँ, बताइए. So, sir, my question is, if a person has Saturn in Lagna, can we infer that he or she is going to be lazy? Going to be lazy? Yeah. No, I told you that if Saturn is a malefic planet, if Saturn is not well placed, then you will be lazy. If Saturn is well placed, then you will work hard. And you know the importance of hard work because you keep on progressing because of the hard work only. लेजी जब बनाएगा जब सैटर्न आपका बिल्कुल खराब हो आपके हॉरोस्कोप में. और देखिए सैटर्न को हमने कहा कि कर्म का कारक भी है. सैटर्न फोर्सेस यू टू डू वर्क, और बिना सैटर्न की ब्लेसिंग के कुछ लोग देखे होंगे आपने, काम ही नहीं करते, वो कुछ करना ही नहीं चाहते, बिस्तर से उठना नहीं चाहते वो, बिकॉज सन इज वेरी वीक इन दैट केस. तो अगर सन बहुत वीक होगा तो आदमी लेजी होगा, और अगर सन अच्छा होगा तो आप मेहनत भी करेंगे और आपको मेहनत करने में मजा भी आएगा. या हाँ जया जी पूछिए. नहीं, वो आप सन बोल गए थे ना, मैंने कहा सैटर्न. हाँ, करेक्ट. या anyone, you can ask any question, not necessarily connected with what we discussed actually, but in case you have any doubt about this knowledge, you can most welcome. I have two questions, uncle. One is you mentioned rashis at the beginning, right? Yeah. So those rashis are, again, they're lunar rashis? They're lunar rashis. I didn't say anything about lunar or the solar. They are the 12 parts of the zodiac. Okay. They are the 12 signs of the zodiac. I see. There is no lunar and solar. But आपका जो confusion है वो इसलिए है कि जब हम राशि की, अपनी राशि की बात करते हैं कि हमारी जन्म राशि क्या है, वो होती है जो साइन में, जिस राशि में मून का प्लेसमेंट होता है बर्थ के टाइम में, वो आपकी जन्म राशि बन जाती है. So that is a different thing. But what we talked is the simple 12 signs or the parts of the zodiac. Got it.
Right, understood. And then the second question, Uncle, is around payas. You mentioned paya. Paya, yeah. Will you discuss that more in another class? I will tell you that also, what they meant by the paya. But what I discussed today, that was only the position of moon in your birth chart. And paya only indicates what type of position of moon is there. और कुछ position में moon becomes very strong. So this said कि you have a silver paya. जैसे आप जानते हैं silver, copper and gold and iron 4 तरह के पाए होते हैं. And the best paya is the silver paya because silver is the metal of moon. And this paya is basically concerned with the planet moon only. और moon represents your mental strength. तो अगर मून का प्लेसमेंट आपके हॉरोस्कोप में अच्छा है तो नेचुरली वो लोग समझते थे कि हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये अपने आप फेस कर लेगा या कर लेगी. So that's why they used to feel happy कि मून अगर अच्छा है तो it's a good horoscope. And they never used to ask anything else. Surprisingly, they were only concerned with the paya. And the fact is कि अगर आप आज के टाइम में देखेंगे the paya has no meaning, no relevance also. Because you can't decide the position of moon just by virtue it is placed in a particular house. That is a wrong thing. Very basic thing actually. So आजकल के लिए इसलिए ज्यादा कोई उसकी जोड़ नहीं देता. But पहले टाइम में इसको काफी हम लोग concerned थे because most of the people were uneducated. तो उनको यही पढ़ाया जाता था कि पाया अगर अच्छा है तो mental strength बहुत है. And that was decided just because the moon was placed in a particular house. लेकिन जो moon की जो strength होती है वो खाली house के ऊपर depend नहीं करती. It depends on so many other factors also. So that we have to examine. Then only we can say कि your moon is strong or weak. Understood. Thank you. Yeah. Sir, I have a question regarding the same Rashi. When you mentioned that for a birth chart, in Vedic astrology, we consider the moon sign. Correct. But in general, when we read our zodiacs in newspaper or any websites, it is related to these solar Rashis, Sun like sign. your birth, sun sign. sign. Yeah. So देखिए, how? When we will discuss subsequently, you find that there are two systems in astrology. One who believe in the lunar system, one who believe in the solar system. But as far as we in India are concerned or the Vedic astrology is concerned, we are mostly dependent on the moon position of moon actually. जो हम लोग prediction करते हैं वो moon राशि से करते हैं और moon राशि जो है वो fixed नहीं होता. Solar system में तो क्या होता है कि sun का जो movement है that is fixed. कि sun इस राशि में इस दिन ही जाएगा. ये सन इस पर्टिकुलर राशि में इस दिन ट्रांजिट करेगा. लेकिन मून का ऐसा नहीं है. मून की जो राशि आपकी होती है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपके हॉरोस्कोप में मून का प्लेसमेंट कहाँ पर है, मून किस राशि में प्लेस्ड है. लेकिन सोलर सिस्टम में ये डेट वाइज होता है कि इस पर्टिकुलर डेट को सन जो है इस साइन में एंटर करता है. तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब सोलर साइन से प्रेडिक्शन होती है तो ब्रैकेट में डेट लिखी होती है. लिखा होता है एरीज फ्रॉम 15th अप्रैल टू 15th ऑफ मे. बट जब मून साइन में फिर वो डेट नहीं होती क्योंकि डेट का उससे कोई फिक्स नहीं होता उससे. Okay. We will study both the systems and then we will see which will play an important role in your life. हम बल्कि we examine from three angles. One is the lagna, another is the sun, and third is the moon. Lagna is the body, moon is the mind, and the sun is the soul. तो हम तीनों से एग्जामिन करते हैं. Anyone else? Chaliye friends, I think it's okay. Thank you so much. And good night also. We meet tomorrow at the same time. Thank you. Thank you so much. Uncle. Thank you. नमस्कार. Thank you.